Yes, good afternoon, Akhil. Yes. Anyone wants to share your screen? Hello? Have you done the programs? I have given some assignments. Hello? No any assignments? Okay. Last time we have covered the topic event handling. Okay. We have done various types of event handling programs. Have you done the programs of event handling? Yes, ma'am. Okay. Yes. Okay, Himani Sharma, Neha, Anil, yes, yes. Okay, okay. मिहिर ने बनाए हैं. सनी, वेरी गुड, वेरी गुड. मारिया, वेरी गुड. वेरी गुड अखिल. यस. प्लीज ओपन योर वीडियो. नेहा, आपकी वीडियो ऑन नहीं है. नेहा, Ma'am, actually electricity issue has so. just for 1 second. I have to take your attendance. इतना डार्क आ रहा है, आपका फेस ही नहीं आ रहा. लाइट नहीं है क्या? Yes, ma'am. Yes. Okay. Okay, now I am sharing the screen. Yes, last time we have covered the topic of HTML DOM. Okay, HTML DOM and various types of events we have done. Okay. Yes. Any doubt? आप में से किसी को कोई डाउट है? No any doubt?
मैम एक बार हमें ऑन अनलोड का एग्जांपल देके समझा दो प्लीज। अच्छा ठीक है, ओके सेम क्वेश्चन ओके नेहा। यस यस रमीजुल, यस मैम, मुझे भी सेम क्वेश्चन है ऑन अनलोड का। सेम अनलोड, वेरी गुड। अनलोड वाला ओके ठीक है। अनलोड वाला आपका नहीं हुआ? नो मैम। यस नो मैम। ठीक है ओके मैम ओके। अदर यू हैव डन ऑल द इवेंट्स? Yes, ma'am. यस मैम, दैट्स रॉन्ग। Yes, ma'am. Okay. And some exercises are there in your book. Exercises, design an HTML page. I think we have covered in this last first name, last name. Okay. And just you have to click on try button, then display the combined name. Okay, Bhagat Singh. Just you have to click on try button, then display Bhagat Singh. Okay. This is a very simple question. I think I have done. आप लोगों ने कर लिया होगा तो मुझे नहीं आइडिया। ओके, यूजिंग गेट एलिमेंट बाय आईडी आप कर सकते हो इसको। ओके, या फिर नेम के थ्रू भी कर सकते हो। मॉडिफाई द बिलो स्निपेट ऑफ कोड टू चेंज द एसआरसी एट्रीब्यूट ऑफ द इमेज एलिमेंट टू, आपके पास इमेज यहाँ पे गिवन है, ओल्ड इमेज। ओके, और आपको यहाँ पे आईडी के थ्रू यू हैव टू मॉडिफाई द इमेज। आपको आईडी के थ्रू इस इमेज को मॉडिफाई करना है। ठीक है, आईडी के अकॉर्डिंग आपको फेच करना है। यू हैव डिफाइंड इमेज आईडी एसआरसी और यू हैव टू फेच दिस आईडी एंड चेंज द पर्टिकुलर इमेज। ओके, सॉल्व दिस क्वेश्चन। I will check next class, in next class. Okay, write the JavaScript code to change the color of HTML element h2 to green. Okay, just you have to define a particular color और आपको h2 आपको define करना है and you have to change the color when we click on change color button. हो जाएगा। I think ये भी simple है। ठीक है, next we will use event listener. Okay, we use the event listener event. Event listener क्या होता है? देखो ये सारे हम कर चुके हैं। इवेंट लिसनर आपको इसके अंदर यूज करना है। इवेंट लिसनर का मीनिंग क्या होता है? इवेंट लिसनर आर अटैच्ड टू यस। जब हम किसी भी इवेंट को कॉल कराते हैं तो इवेंट लिसनर उनको रिस्पॉन्ड करते हैं। Yes, very good. Event listener are attached to elements and fired when certain event occur. इसके लिए आप क्या यूज करते हो? Add event listener method which is used to attach an event handler to an element. This method adds an event handler in addition to the existing ones. Okay. अब इसके अंदर वो ऑटोमेटिकली आपका वर्क करता है। जो पर्टिकुलर आप इवेंट के साथ इसको हैंडल करेंगे, जस्ट इवेंट लिसनर ऑटोमेटिकली इवेंट को हैंडल कर लेता है। ओके, जस्ट यू हैव टू मेंशन सिंपल एग्जांपल। यस, दिस इज ए वेरी सिंपल एग्जांपल। ऐड एन इवेंट हैंडलर टू द एलिमेंट बटन, ओके, वेयर ऑन क्लिक एन अलर्ट मैसेज इज शोन। वी हैव डिफाइंड इन बॉडी सेक्शन. In body section, just we have defined H3, heading 3, paragraph button. We have defined a button here, ID equal to button 1 and submit button. Okay, value is submit. In script section, we have defined document dot get element by ID. Okay, we have to fetch this ID button 1 and we have defined an event dot add event listener. ओके, एंड क्लिक क्या है आपका यहाँ पे? आपका यहाँ पे क्लिक क्या है? एक पर्टिकुलर इवेंट। जैसे आप क्लिक करते हो तो ये पर्टिकुलर आपके पास क्या है? ऑन क्लिक हम करते हैं ना, आप क्लिक यूज करते हो। एबीसी क्या आपके पास यहाँ पे फंक्शन है। दिस इज ए पर्टिकुलर फंक्शन। व्हेन वी कॉल दिस फंक्शन देन ऑटोमेटिकली इवेंट आपका इसके अंदर वर्क करेगा। ठीक है, व्हेन वी क्लिक ऑन दिस बटन,
आप इस बटन पे क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली इवेंट हैंडलर आपका वर्क करेगा। आप इसको रन करके देखिएगा, ठीक है। दिस इज ए वेरी सिंपल प्रोग्राम। आफ्टर दैट एक असाइनमेंट गिवन है आपके पास, एड 2 क्लिक इवेंट्स टू द एलिमेंट। आपको इसके अंदर 2 इवेंट्स आपको क्रिएट करने हैं। एड 2 क्लिक इवेंट्स टू द एलिमेंट बटन। व्हेन द फर्स्ट क्लिक अलर्ट मैसेज विल डिस्प्ले दिस इज फर्स्ट क्लिक। ओके, व्हेन वी क्लिक इन द सेम, आपने क्लिक किया सेकेंड क्लिक पर तो आपका मैसेज आएगा दिस इज सेकेंड क्लिक। ओके, एंड सॉल्यूशन आल्सो गिवन। जस्ट आपके पास यहाँ पे एक ही बटन है, बटन 1 सेम ही आपके पास यहाँ पे बटन है और हमने उसके ऊपर दो इवेंट फायर करवाए हैं, मतलब डिफरेंट वे से इवेंट हैंडलर जो इसमें यूज किया है और 2 फंक्शंस इसके अंदर अप्लाई किए हैं। दिस इज फर्स्ट क्लिक एंड दिस इज सेकेंड क्लिक। ओके, आई थिंक ये भी सिंपल है, हो जाएगा। ओके, आप इजीली वर्क कर सकते हो, यूज कर सकते हो इसको। नेक्स्ट आपके पास क्या आता है, डिजाइन। जो आपकी एक्सरसाइजेज है ना, बुक की एक्सरसाइजेज हैं, आप प्लीज वो भी कर लेना क्योंकि आपका उसी के अकॉर्डिंगली पेपर में आता है, ठीक है। डिजाइन एन HTML पेज एज शोन बिलो। इंप्लीमेंट द इवेंट ऑन क्लिक, ऑन बटन क्लिक। वेरी सिंपल, यू हैव टू शो द डेट। Okay, display the date using HTML DOM event. When we click on submit and then display date and time. Just you have to show the date function. आप date function के थ्रू आप date और time show कर सकते हो, ठीक है। date and time show कर सकते हो इसके अंदर। By default जो आपका time आता है, जैसे आपका यहाँ पे show हो रहा है, आपका क्या आ रहा है यहाँ पे, मंडे May 31st 2021 आपके पास आ रहा है और यहाँ पे आपके पास है टाइम जो आता है वो डिजिटल फॉर्मेट में आता है, ठीक है, इन डिजिट्स फॉर्म में। फर्स्ट ऑफ ऑल आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ओके, वी कैन इजीली फेच द पर्टिकुलर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड आल्सो। ओके, वी विल यूज इन डिजिटल क्लॉक। व्हेन वी मेक डिजिटल क्लॉक देन वी कैन यूज दिस पर्टिकुलर मेथड, आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स। ये तो आपका कुकीज का है, ये अभी हमने करना है कवर, कुकीज वाला, ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, वेन एवर यूजर इनपुट ए टेक्स्ट बॉक्स इन द टेक्स्ट बॉक्स इन एनी केस, आप कोई भी केस में डालो, लोअर या अपर में, इट शुड बी कन्वर्टेड इन अपर केस। ओके, आप यहाँ पे कोई भी इवेंट यूज कर सकते हो, क्लिक इवेंट। अगर आपने ऑन चेंज इवेंट यूज करना है तो वी कैन यूज ऑन चेंज इवेंट। वी कैन चेंज द letters into uppercase. Okay, and next is the design HTML page to implement HTML DOM events by changing an image. आप पर्टिकुलर इमेज के ऊपर माउस ओवर इवेंट्स, ये मैं अभी करवा देती हूँ आपको। ऑन माउस ओवर, ऑन माउस आउट, डाउन, अप इवेंट्स वी कैन यूज इमेजेस के ऊपर। एक्सक्यूज मी मैम, क्वेश्चन मैम, ये MCSL 216 जो PDF आप दिखा रहे हैं वो मेरे LMS पे दिख नहीं रहा, मतलब कहाँ पे? ये वाला PDF मेरे LMS पोर्टल पे। क्यों, आपको क्यों नहीं वहाँ पे विजिबल क्यों नहीं हो रहा? बस एक ही फाइल दिख रहा है, वो सेक्शन 1 डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम लैब्स, यही दिख रहा है मैम। और LMS में बहुत सारे PDFs मिसिंग हैं, सो हमें eGAN कोर्स डाउनलोड करना होगा। और बाकी और सबको दिखाई दे रहा है? नो मैम। हेलो, जो मैं यहाँ पे नो मैम, नोबडी कैन सी इट। No, ma'am. We have to get it from eGAN course. हेलो, क्या हुआ आपको? ये सब मैं जो इतना देर से दिखा रही हूँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था? नहीं, हमारा ये कंसर्न है कि मैम हमारे LMS पोर्टल पे ये PDF अवेलेबल नहीं है। अच्छा, हम ये बता रहे हैं बस। eGAN कोर्स से ले लो। पोर्टेबल भी नहीं है तो आप मैं आपको बता रही हूँ, आपको ये तो बिल्कुल PDF है, आप PDF नेट से भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपके पास पूरा नेट पे अवेलेबल है, ठीक है। ये तो जस्ट अंडरस्टूड।
216 आपका कोड डालो और ऑटोमेटिकली डाउनलोड कर सकते हो मटेरियल, ठीक है। या मैम। हाँ, बहुत ही इसके अंदर सिंपल वे में आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो। मैं कह रही हूँ कि इतनी देर से मैं दिखा रही हूँ आपको, ये दिखाई नहीं दे रहा आई थिंक। ये क्या हो गया, गड़बड़ हो गई क्या? हम ये देख के ही समझे कि हमारे एलएमएस पे ये पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो फिर कहाँ से आ रहा है, तो ई ज्ञान से सर्च कर लेंगे, नो इशू। यस यस, ई ज्ञान कोर्स से आप इजीली फाइंड करके ऑटोमेटिकली निकाल सकते हो। ओके, यस, मैंने भी वहीं से ही आपका इसमें से निकाला था। ओके, यस, देखिए आपके पास देखो जो यहाँ पे आ रहा है ना, इस कोड में MCSL 216 है, डिजाइन एंड एल्गोरिथम, इसी के अंदर ये बच्चे आप जब देखोगे ना, चेक करोगे, इसी के अंदर आपके पास वेब डिजाइनिंग का भी है। लास्ट में देखो वेब डिजाइनिंग का डाउन साइड में है, ऊपर आपका डिजाइन एंड एल्गो है और नीचे आपका ये है, ठीक है। ओनली वन PDF इज देयर, देन कंबाइन ऑल द पर्टिकुलर टू थिंग्स। ओके, यस, ओके, वी हैव डन द पर्टिकुलर डॉम। अब डॉम के अंदर भी मैं आपको और भी कुछ बताना चाह रही हूँ। सपोज कीजिए वी हैव डन द ऑप्शन बटन, वी हैव डन द ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन हम कर चुके हैं। व्हाट इज यूज ऑफ ऑप्शन बटन? रेडियो बटन, वी कैन से रेडियो बटन, ऑप्शन बटन वी हैव डन। ओके, वी कैन यूज इन DOM concept also. We have done the concept of drop down menu. Okay, we have done the concept of drop down menu हमने सबने कर लिया है। in HTML के अंदर हमने कर लिया है, but in JavaScript, what is use of JavaScript in drop down का particular JavaScript में क्या रोल है? आपने यूज किया चेक बॉक्स। अब देखिए चेक बॉक्स का क्या रोल है, हाउ टू फेच द पर्टिकुलर बॉक्सेस। आप इसके थ्रू बॉक्सेस को कैसे फेच करोगे, बहुत अनलिमिटेड यूज है, ठीक है। हम लोगों ने इवेंट्स कर लिए, ठीक है, इवेंट्स हमने कर लिए, इवेंट्स के बेसिस पे हम बहुत कुछ कर सकते हैं। इवेंट के बेसिस पे आप अपना पर्टिकुलर ईच एंड एवरीथिंग फेच कर सकते हो यूजिंग पर्टिकुलर डॉम। ओके, यस, सपोज वी हैव वेरियस ऑप्शंस, लाइक आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस हैं। व्हेन वी create a particular button like red, green, blue, yellow, we can change the background color, foreground color, fore color, we can change the colors also, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता रही हूँ, सपोज आपने ये आपके पास क्या है, एक रेडियो बटन, दिस इज ए पर्टिकुलर रेडियो बटन, 3 रेडियो buttons we have, okay, and suppose you have to change the color, आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है विद द हेल्प ऑफ रेडियो बटन, ठीक है, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घूम के आ सकता है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। ओके, यू आर स्टूडेंट ऑफ MCA, तो आपको MCA के अकॉर्डिंगली ईच एंड एवरीथिंग आपको वेब डिजाइनिंग में आना चाहिए। जस्ट वी हैव क्रिएटेड बटन्स के थ्रू आपने कलर चेंज किया, बटन्स के थ्रू आपको चेंज करना है। लाइक मेरे को यहाँ पे रेडियो बटन के थ्रू बैकग्राउंड नहीं यहाँ पे, क्योंकि वी कैन सेलेक्ट ओनली वन ऑप्शन एट ए टाइम। ओके, इन रेडियो बटन व्हेन वी क्लिक ऑन रेड बटन, देन बैकग्राउंड कलर विल रेड चेंज इनटू रेड कलर, एंड सेम व्हेन वी क्लिक ऑन ग्रीन, ग्रीन हो जाए, ब्लू हो तो ब्लू हो जाए, तो ऑटोमेटिकली वी कैन चेंज द कलर ऑल्सो, ठीक है। अब देखो ये मेरे पास क्या है, रेडियो बटन्स। अब देखो ये मेरे पास क्या है, ड्रॉप डाउन मेन्यू। अब मान लो मेरे को ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू कलर चेंज करने हैं। अब मान लो मैंने यहाँ पे इसके अंदर कलर सेट कर दिया, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, ओके, एंड वी कैन सेलेक्ट वन बाय वन ऑप्शन एंड वी कैन चेंज द फोर कलर, बैक कलर ऑल्सो। ओके, तो डिफरेंट वेज है आपके पास। वी कैन फेच द पर्टिकुलर डेटा अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पे डिपेंड करता है आपको कैसे करना है, बट आना चाहिए, है ना। तो मैं आपको बता रही हूँ, आपकी बुक में नहीं है ऐसा कुछ भी, लेकिन फिर भी आना चाहिए, क्योंकि दीज आर कॉन्सेप्ट्स ऑफ वेब डिजाइनिंग। ओके, तो हाउ टू फेच द पर्टिकुलर डेटा। अब देखिए मैं आपको वन बाय वन चीजें बता रही हूँ, कैसे कैसे आपको यूज करना होता है, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है आपके पास
क्योंकि मैंने कल आपकी ये थी सैटरडे की, सैटरडे क्लास होती है ग्रुप 1 की, आई थिंक ग्रुप 1 2 जो भी है, लेकिन वो उन बच्चों ने मुझे कर करके भी दिखाए प्रोग्राम्स, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि हाउ टू यूज इट, कैसे कैसे इनको यूज किया जाता है। अगर आपको एक कॉन्सेप्ट आ जाता है ना, तो आप ऑटोमेटिकली आप अदर कॉन्सेप्ट्स कर सकते हो, अदर एग्जाम्पल्स कर सकते हो। ओके, यस। अब देखिए मैं आपको फर्स्टली बता रही हूँ ऑप्शन बटन। ऑप्शन बटन का यूज क्या होता है? व्हाट इज यूज ऑफ ऑप्शन बटन? वी कैन चेंज द कलर्स यूजिंग ऑप्शन बटन। कैसे कलर चेंज कर सकते हो? हाउ टू यूज इट? देखिए सपोज कीजिए आपके पास यहाँ पे क्या है, आपको चेंज करना है कलर। ये तो मैंने स्टूडेंट को दिया था, उन्होंने उसी टाइम मुझे बना के भी दिखा दिया था। वन थिंग मैं सर्च करूँ पहले तो मेरा डेटा कहाँ गया। यस, अब एग्जाम्पल देखिए, आपको अपने आप ही करोगे आप। मैंने ये वाला क्वेश्चन करवाया था स्टूडेंट्स को, उन्होंने वो मुझे अपने आप करके दिखाया, ठीक है। देखो दिस इज ए पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स, ये आपके पास एक टेक्स्ट बॉक्स है, ओके। एंड दीज आर 2 रेडियो बटन्स। हमने यहाँ पे 2 रेडियो बटन्स क्रिएट किए हैं। व्हेन वी टाइप 5 वैल्यू, आपने यहाँ पे 5 वैल्यू इनपुट किया, देन एंटर द रिजल्ट। रिजल्ट हमें एंटर नहीं करना, जस्ट व्हेन वी क्लिक ऑन दिस रेडियो बटन, डबल वैल्यू हो जाएगी आपकी, 5 की डबल हो गई। व्हेन वी क्लिक ऑन स्क्वायर, देन द वैल्यू विल डिस्प्ले स्क्वायर वैल्यू, ओके। आपकी वैल्यू जो है इसी का 5 का स्क्वायर विजिबल हुआ आपके पास, ओके। अब देखो कैसे हो रहा है ये। वी हैव क्रिएटेड 2 रेडियो बटन्स, ठीक है। जस्ट वी हैव क्रिएटेड 2 रेडियो बटन्स एंड 2 टेक्स्ट बॉक्सेस। अब उसके अकॉर्डिंगली जब आप यहाँ पे क्लिक कर रहे हो तो वो वैल्यू आपकी यहाँ पे डबल हो रही है, ये स्क्वायर हो रही है। इसके पीछे क्या लॉजिक है, कर सकते हो? ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके। ये पर्टिकुलर क्या है, डॉम का कॉन्सेप्ट है कि हाउ टू फेच ए पर्टिकुलर बॉक्स वैल्यू, हाउ टू फेच ए रेडियो बटन के थ्रू आप कैसे वर्क कर रहे हो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली। चलिए देखिए मैं आपको आइडिया देती हूँ आपको कैसे करना। सिंपल, आपके बस आप मेन क्या करना, वी हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर रेडियो बटन। आप जितने मर्जी रेडियो बटन बनाइए, आपको ये सब पता है कि आपको नेम देना है सबका सेम। जैसे मैं यहाँ पे रेडियो बटन R1 दे रही हूँ, तो इसका नाम भी R1 है। इन तीनों बटन्स का नेम क्या है, R1 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 R1, ओके। सेम वी हैव क्रिएटेड 2 radio buttons here and name should be same, okay. And how to fetch particular this radio button, how to fetch this radio button, नाम तो सबका सेम ही है ना। तो कैसे आप फेच करोगे, इसके लिए हमें क्या यूज करना होता है, आप यूज करोगे, ये आपके पास है, इसके अंदर ये पूरा फॉर्म है, ओके। फॉर्म नेम वी हैव डिफाइंड F1, एंटर वैल्यू, input type equal to text, name equal to T1. T1 is a first box. This is a particular box. We can fetch the using by ID. ID के थ्रू भी fetch कर सकते हो, या just simple way में दे दिया name equal to T1। आपको हर concept आना चाहिए। आप name के थ्रू ID भी कर चुके हो, by tag name भी कर चुके हो, by particular element name भी कर सकते हो, okay? Yes, we have created 2 radio buttons. We have defined the name R1 R1. On click, we have defined a particular on click event on a particular radio button, okay, and click the res function. Res क्या है, आपका एक function created है। When we click on res first button, first radio button, then display the value accordingly. If F1 dot R1 0 means index value, ओके। देखो दोनों का नाम तो सेम है, इसका नाम भी R1, इसका नाम भी R1। हाउ टू फेच ए पर्टिकुलर, जस्ट यू हैव टू डिफाइन ए इंडेक्स वैल्यू। वी कैन फेच द डेटा यूजिंग इंडेक्स वैल्यू F1 डॉट R1 0 डॉट चेक।
you have to mention this is a particular dot check. Okay, then display the value in a double form. Okay, कहाँ पे value visible होगी? T2. This is a particular box name is T2. F1 dot, F1 is a form name. T2 dot value equal to, you have to multiply with 2. 2 से multiply करोगे तो वो उसका डबल दिखा देता है. Okay, same we have to define for second square. आपको second square के लिए you have to mention F1 dot R1 1 dot check. जैसे आप 1 के ऊपर, this is a particular 0 index and this is a particular 1. Same you have to follow next 2, 3, 4, 5. Okay, and F1 dot T2 dot value, just you have to multiply with same value and you have to find the square value of 5 की value जो भी आपके पास उसके अंदर visible होगी. This is a very simple program. Just you have to call according to, दुनिया भर के प्रोग्राम कर सकते हो आप. अगर आपको एक प्रोग्राम आया तो प्लीज नोट इट डाउन. दिस प्रोग्राम इज very important and you can done every program with the help of this particular logic. Yes, have you noted? Yes ma'am. ओके, यस. अब देखो मैंने आपको दिया ये रेड ग्रीन ब्लू. आप ये वाला प्रोग्राम बना सकते हो, कलर को चेंज करने का आप कर सकते हो. मैम ये आप ऑलरेडी प्रोग्राम बच्चे रेडियो बटन के थ्रू आप लोगों ने नहीं किया. ओके मैम. ठीक है, रेडियो बटन के थ्रू व्हेन वी क्लिक ऑन रेडियो बटन देन कलर आपका चेंज हो. ठीक है, चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ. नेक्स्ट आपके पास क्या है? ये ड्रॉप डाउन मेन्यू. आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू यूज करना है. वी कैन कॉल ड्रॉप डाउन मेन्यू कॉम्बो बॉक्स ऑल्सो. इसको हम कॉम्बो बॉक्स भी बोलते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू बोलते हैं. उसके थ्रू आपको कलर चेंज करना है. ठीक है. अच्छा, एक क्वेश्चन और मैं दे रही हूँ आपको. आपको क्या करना है? इमेज इंसर्ट करनी है. देखो आपको क्या करना है इसके अंदर, यू हैव टू इंसर्ट ए पर्टिकुलर इमेजेस. ओके, देखो यहाँ पे आपको एक इमेज का बॉक्स क्रिएट करना है. अभी मैं आपको रनिंग पॉइंट पे दिखाती हूँ. व्हेन वी क्लिक ऑन इमेज 1, यहाँ पे शो करना है आपने इमेज 1 एंड यहाँ पे आपने शो करना है image 2. Okay, when we click on first radio button image 1, then display image here. When we click on image 2, then change the image. आपको यहाँ पे 3 images create करनी है. First is the default image. Okay, first आपकी default image आएगी एंड जब आप रेडियो बटन फर्स्ट पे क्लिक करते हो तो आपके पास इमेज चेंज हो जाए. सेकंड पे क्लिक करते हो तो इमेज चेंज हो जाए. ओके, अब मैं आपको इसका रनिंग पार्ट दिखाती हूँ. अब ये मत कहना कि मैम मैं ये करके दिखाती हूँ. देखो ये आपके पास इमेज है. दिस इज ए पर्टिकुलर डिफॉल्ट इमेज. व्हेन वी क्लिक ऑन फर्स्ट इमेज, इमेज 1, वी हैव डिफाइंड 2 रेडियो बटन सेम. ओके, जैसे आप यहाँ पे चेंज कर रहे हो आपकी इमेज चेंज हो रही है. यस, कर लोगे? बताइए. यस मैम. ये वाला क्वेश्चन नोट करके रखो, नेक्स्ट टाइम आई विल चेक. ओके, ट्राई करा करो. अगर जब तक आप ट्राई नहीं, प्रॉब्लम तभी आएगी ना जब आप ट्राई करोगे. ठीक है, अगर आपने इसके अंदर आपने
ट्राई ही नहीं करोगे तो प्रॉब्लम आएगी, पता ही नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। कम से कम करा तो करो, बताया तो करो कि मैम नहीं हो रहा है। ठीक है, अब जो मैंने ये क्वेश्चन दिया है आप इसको ट्राई करना, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत ही इजी। जैसे मैंने आपको बताया ना अभी डबल वाला, उसी टाइप का है। चलो नेक्स्ट देखिएगा, अब मैंने आपको दिया है एक कलर वाला, ऑप्शन के थ्रू आपने कलर चेंज करना है। अपने क्वेश्चंस नोट करते रहना जो जो मैं आपको दे रही हूँ। अब ये है ड्रॉप डाउन मेन्यू, वी हैव डिफाइंड ए ड्रॉप डाउन मेन्यू हियर। अब मैं आपको दिखा दूंगी, डोंट वरी। देखो this is a particular drop down menu and we can say combo box. Okay, when we click on red, then background color will change into red color. Okay, and जैसे ही आप यहाँ पे ग्रीन पे करोगे तो बैकग्राउंड आपका ग्रीन हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंगली। ठीक है, डिफॉल्ट कलर भी सेट कर सकते हो। डिफॉल्ट कलर मैंने यहाँ पे दिया नहीं है, व्हाइट है, बस आपने डिफॉल्ट कलर सेट करना है तो वो भी कलर सेट कर सकते। इसके थ्रू भी आपको बैकग्राउंड आपको चेंज करना। ठीक है, अब मैं इसकी कोडिंग दिखाती हूँ क्योंकि ड्रॉप डाउन मेन्यू में आपको बता रही हूँ हाउ टू यूज इट। बहुत तो इसको भी यूज कर सकते हो। यस आप इसके थ्रू भी कर सकते हो जो मैंने यहाँ पे यूज किया है, या पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के थ्रू भी यूज कर सकते हो। मैंने यहाँ पे कोई स्क्रिप्ट जस्ट यहाँ पे सिंपल सा ऑन चेंज इवेंट के अंदर ही दे दिया। ठीक है, आप इसके थ्रू भी कर सकते हो। एक और मैं दिखाऊंगी आपके, वो भी एक यूज है, उससे भी कर सकते हो। देखो क्या है ये, सेलेक्ट ऑन चेंज, हमने यहाँ पे यूज किया है ऑन चेंज इवेंट। ठीक है, जैसे ही आप एक कॉम्बो बॉक्स क्रिएट कर रहे हो, कॉम्बो बॉक्स कैसे बनता है आपका, यूजिंग सेलेक्ट ऑप्शन, यूजिंग सेलेक्ट टैग। ओके, ऑन चेंज इज ए इवेंट, वी हैव टू डिफाइन डॉक्यूमेंट डॉट बीजी कलर, बैकग्राउंड कलर आपको चेंज करना है। वी कैन ऑल्सो चेंज द एफजी कलर ऑल्सो, 4 कलर ऑल्सो। This dot options, this dot option means these are options, we have defined these options here. Okay, this dot options, this dot selected index, मतलब कि ये सारे ऑप्शंस में से रेड ग्रीन ब्लू में से जो भी पर्टिकुलर सिलेक्टेड इंडेक्स है उसकी वैल्यू के थ्रू आपका बैकग्राउंड कलर चेंज होगा। ओके, दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल कोड, जस्ट वी हैव डिफाइन ए सिंपल लाइन में आपने कोड को डिफाइन कर दिया। ओके, आप एक मैं स्क्रिप्ट के थ्रू भी बताऊंगी आपको, उसके थ्रू भी आप कलर को चेंज कर सकते हो। ओके, यस देखिएगा मैं नेक्स्ट आपको बता रही हूँ, इसी के अंदर आपको यूज करना है। यस देखिए, इसमें आपका 4 कलर चेंज हुआ है। ओके, 4 कलर आपने यहाँ पे चेंज कर सकते हो ड्रॉप डाउन मेन्यू के थ्रू, बट यूजिंग स्क्रिप्ट, वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फॉर दिस। यस, अब देखिए मैं आपको पूरा अंडरस्टैंड कराती हूँ कि ये स्क्रिप्ट क्या है। ओके, बिकॉज दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्क्रिप्ट, इसके थ्रू आप बहुत सारी और स्क्रिप्ट भी यूज कर सकते हो। ओके, यस, first of all, this is a particular drop down menu. Okay, we have defined a particular drop down menu here and we can change the 4 color. Okay, yes, you have to create a drop down menu. First of all, you have to define a select ID. Here we have defined a particular ID. सेलेक्ट की हमने यहाँ पे आईडी डिफाइन कर दी है, आईडी इक्वल टू कलर की COL दे दिया। ओके, ऑन चेंज, वी हैव डिफाइंड ए इवेंट ऑन चेंज एंड डिफाइंड ए फंक्शन color 1. Just call this particular function here, okay, and just you have to define the options. In color 1 function, this is a very very simple code. You have to understand this particular code. Okay,
वेरिएबल आपने मेंशन किया इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी COL. दिस इज ए आईडी, कलर की हमने आईडी डिफाइन की है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द कंप्लीट कलर आईडी. आपने पूरा सेलेक्ट कॉमा बॉक्स को फेच कर लिया. ओके, अब मेरे को इसमें से कलर मैंने पूरा कॉमा बॉक्स उठा लिया. अब कॉमा बॉक्स में से मुझे क्या उठाना है? ऑप्शंस. ऑप्शंस में से सिलेक्टेड इंडेक्स. ओके, वेयर S इक्वल टू E डॉट ऑप्शंस. E क्या है हमारा? कॉमा बॉक्स, ड्रॉप डाउन मेन्यू कॉमा बॉक्स. ओके, उनके अंदर ऑप्शंस. ऑप्शंस में से E डॉट सिलेक्टेड इंडेक्स डॉट वैल्यू. लाइक वी आर selecting the color green. This is a particular green color. Just you have to define a color. आपने यहाँ पे उसकी selected index है, उसकी वैल्यू है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके पास S में स्टोर होगा. इन डॉक्यूमेंट डॉट FG color इक्वल टू S. आप इसके अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द 4 कलर. ओके, दिस इज ए वेरी सिंपल, है ना? सिंपल है ना? बोलो. यस मैम. प्लीज नोट इट डाउन. इसको आप नोट कर लो. मैं इसी के बेसिस पे आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ फिर. यस, हो गया. अब आगे देखिएगा. अब देखिए आपको क्या करना है इसके अंदर. आज आपको क्या खाना है? फेवरेट फूड क्या है आपका? पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ऑप्शन मोमोज. वी हैव वेरियस ऑप्शंस. बताइए क्या खाना है आपको? बर्गर, पिज्जा. पिज्जा खाना है. मोमोज. ओके, आपको जो ऑर्डर करना है यहाँ से आप ऑर्डर करोगे और वो आपका ऑर्डर पास ऑन हो गया. देखो यहाँ पे सेलेक्टेड हो गया आपका कि आपने ये पिज्जा खाना है. ओके, यस, चाउमीन, बर्गर, मोमोज, आपको जो लेना है उसके अकॉर्डिंगली वी कैन सेलेक्ट द पर्टिकुलर डेटा. इंडेक्स के अकॉर्डिंगली चेंज हो रहा है और यहाँ पे आपकी वैल्यू चेंज हो रही है. फर्स्ट क्वेश्चन आपको ये सॉल्व करना है. अकॉर्डिंग टू वी कैन सेलेक्ट ए पर्टिकुलर डेटा एंड चेंज इनटू सेम इनटू चेंज इनटू टेक्स्ट बॉक्स. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. अकॉर्डिंग टू जो पर्टिकुलर मैंने आपको अभी बताया ना कि आपको चेंज करना, क्या चेंज करना? कलर चेंज करना. जस्ट आपको सेम लेना है, उसी वही कोड है आपका. बस लॉजिक यूज करके आपको यहाँ पे इसके अंदर सेम एज इट इज आपको इंडेक्स लिखना. ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा. अच्छा, ये तो वही है ड्रॉप डाउन मेन्यू, दोनों सेम है. हाँ, अब देखिएगा यहाँ पे आपके पास सेम है. जैसे मान लो मेरे को पिज्जा खाना है, आप क्लिक करोगे. पहले आपका टेक्स्ट बॉक्स में आ रहा था ना, अब जैसे आपने क्लिक किया तो आपके पास आ गया था सिलेक्टेड आइटम इज पिज्जा. ये ऑर्डर पास हुआ है आपका. ओके, जैसे आती है ना स्लिप आपके पास, जैसे आपने चाउमीन ऑर्डर कर दिया तो वो क्लिक करते हैं कि आपके पास सिलेक्टेड आइटम क्या है? चाउमीन. ओके, आपको 2 वेज से करना है ये वाला क्वेश्चन. ओके, first of all you have to define when we click on this particular index, then display in a text box. Okay, and same you have to when we click on any particular item, okay, then display when we click on, then display in a particular alert box. Alert के through आपका मैसेज शो होना चाहिए. Okay, यस मैम. मैंने आपको कई सारे क्वेश्चन दिए हैं अभी, है ना? आपको जो भी क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ ना, एक तो इमेज को चेंज करने का,
आपके पास यहाँ पे इमेजेस चेंज होनी चाहिए, ठीक है। और मैंने नेक्स्ट आपको दिया है कलर चेंज करने का, आपको कलर चेंज करना है, ओके। और मैंने आपको दिया है अभी ये वाला दिया है, इसके अकॉर्डिंगली आपको चेंज करना है। चलिए मूव ऑन नेक्स्ट। अब देखिए मैं आपको बता दी हूँ चेक बॉक्स। व्हाट इज यूज ऑफ चेक बॉक्स? आज हमने बहुत सारे करने हैं प्रोग्राम्स। चेक बॉक्स समझते हो ना क्या होता है? ये हमारे चेक बॉक्स है। इन चेक व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन रेडियो बटन एंड चेक बॉक्स? मैम आज चलो चेक बताओ। बॉक्स को यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शन सिलेक्शन के लिए और रेडियो बटन सिंगल ऑप्शन सिलेक्शन के लिए यूज होता है। मैं कौन बता रहा है मुझे? हेलो, यस। मैम रेडियो बटन सिंगल ऑप्शन चूज करने के लिए यूज होता है, इंस्टेंट चेक बॉक्स को यूज करते हैं मल्टीपल ऑप्शन सेलेक्ट। Very good, Neha. Very good. In checkbox, we can select multiple options. Okay. We can select multiple options. But in radio button, we can select only one option at a time. Okay. This is a basically difference between checkbox and radio button. Okay. And just आपके पास यहाँ पे क्या है? एक particular box है. ओके और यहाँ पे आपके पास हॉबीज है। आपके पास यहाँ पे कोई भी आपकी हॉबीज हो सकती हैं, डांस, म्यूजिक वगैरह वगैरह। और व्हेन वी क्लिक ऑन, अगर मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे फर्स्ट पे क्लिक किया और मेरी यहाँ पे हॉबी है म्यूजिक, तो यहाँ पे आपका म्यूजिक आ जाए। व्हेन वी क्लिक ऑन, आपने यहाँ पे लिया, सेकेंड आपके पास क्या है? डांस, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे डांस को सिलेक्ट करो तो यहाँ पे म्यूजिक के साथ में आपका आना चाहिए डांस ऑल्सो। ओके यहाँ पे फिर से मैंने यहाँ पे ले लिया मान लो कंप्यूटर, तो यहाँ पे आपका कंप्यूटर आ जाए। मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया, सपोज आपने यहाँ से इसको रिमूव कर दिया तो यहाँ से कंप्यूटर रिमूव भी हो जाए। और जैसे आप इसको रिमूव करो डांस को, तो डांस भी रिमूव हो जाए, ओनली वन रह जाए म्यूजिक। ओके दिस इज ए पर्टिकुलर यूज ऑफ चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस का यूज होता है कि वी कैन सेलेक्ट मोर देन वन ऑप्शन एट ए टाइम। ओके अब मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ कि हाउ टू पर्टिकुलर यूज इट। यस देखिए ये एग्जांपल ही मिल गया, ड्राइंग, म्यूजिक एंड डांस। ओके जस्ट देखो व्हेन वी क्लिक ऑन ड्राइंग, मैंने जैसे ड्राइंग पे क्लिक किया, म्यूजिक पे किया, डांस पे क्लिक किया, तो ऑटोमेटिकली डांस आप रिमूव कर रहे हो। मान लो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं, जस्ट यू हैव टू सेलेक्ट ऑल द ऑप्शंस। ओके ये हमारी इसकी कोडिंग क्या होगी? यस आपको मैं बता रही हूँ, जो आपके पास क्या है? चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस के अंदर वी हैव टू डिफाइन डिफरेंट नेम्स। ओके इन पर्टिकुलर रेडियो बटन वी कैन डिफाइन ए सेम नेम because we have to select only one option at a time. Okay but in radio check boxes you have to give the different names. Like आपने यहाँ पे एक चेक बॉक्स बनाया, इसका नाम डिफाइन किया है C1, इसका नाम C1 नहीं आ सकता, ठीक है। इसका नाम क्या आएगा? C2, C3, C4, ऐसे आप नेम डिफाइन करोगे। क्यों? we can because we have to select more than one option using this, so you have to define the different name for all the particular check boxes. Okay yes अब देखिएगा प्रोग्राम देखिएगा, हमने यहाँ पे क्या मेंशन किया। चेक ये तो आपको सबको फॉर्म तो क्रिएट करना आता होगा। आपने ये पर्टिकुलर क्या है? ये टेक्स्ट बॉक्स, यू हैव टू मेक ए पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स एंड दीज आर check boxes. Okay you have to create 3 check boxes, you can add more also. Okay yes we have to define a form here, input type equal to text and name is T1, and we have defined 3 check boxes. Define the name C1, C2, C3, you can define any name. Okay when we click on any particular check box, then this particular check function will call. Okay in this particular function just you have to define on click check this dot form. आप यहाँ पे this भी दे दोगे तब भी चलेगा। this dot form का मीनिंग क्या होता है कि ये वाला पर्टिकुलर चेक बॉक्स, इस फॉर्म, ये फॉर्म के अंदर जो आपने बॉक्स बनाया है
दिस से भी वर्क करेगा, डोंट वरी फॉर दिस कि आपको दिस डॉट फॉर्म पूरा देना है, आप दिस भी लिख दो, ठीक है। तीनों में सेम चीज आपको मेंशन करनी है। अब देखिए, इन फंक्शन वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर लॉजिक, वी हैव डिफाइंड ए पर्टिकुलर, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन द, क्योंकि आपने पैरामीटर पास किया है तो आपको पैरामीटर्स के लिए आपको मेंशन करना है यहाँ पे एक पर्टिकुलर कोई भी वेरिएबल, ओके, कोई भी आर्गुमेंट पास करते हैं तो यू हैव टू मेंशन द आर्गुमेंट आल्सो, वैल्यू आल्सो। आप यहाँ पे f फॉर्म 1 जो मर्जी दे दो, बट यू हैव टू डिफाइन इन ऑल पर्टिकुलर थिंग्स हियर। आपने फॉर्म दिया है तो यहाँ पे फॉर्म ही डिफाइन करना है, ठीक है। इफ फॉर्म डॉट c1 डॉट चेक, अगर आपने फॉर्म के अंदर c1 को चेक लगाया, ठीक है, आपने इसको c1 क्या है, ये पर्टिकुलर ड्राइंग, c1 को चेक लगा दे हो तो इसका मतलब फॉर्म डॉट t1 डॉट वैल्यू इक्वल टू क्या आएगी आपकी ड्राइंग। एल्स मान लो ड्राइंग आपने रिमूव कर दिया, एल्स पार्ट में चला गया, इसका मीनिंग वहां से वो रिमूव हो जाए। वी हैव टू डिफाइन ए पर्टिकुलर ब्लैंक, ओके। ब्लैंक का मीनिंग क्या होता है कि ड्राइंग के अलावा आपका नल हो जाए, ब्लैंक हो जाए, ओके। सेम इफ फॉर्म डॉट c2 डॉट चेक, जैसे आपने यहाँ पे c2 को चेक लगाया तो वहां म्यूजिक आ जाए, ओके। ऐसे आपने c1 और c2 को चेक किया, यू हैव टू डिफाइन बोथ द कॉम्बिनेशंस। मान लो मैंने c1 और c2 को चेक किया, यू हैव टू मेंशन एंड ऑपरेटर, ओके। तो आपका ड्राइंग एंड म्यूजिक दोनों चीजें आपकी विजिबल हो। अगर आपने फॉर्म 3 को चेक किया, मतलब c3 को चेक किया तो आपका डांस आना चाहिए। ऐसे ही आपका कॉम्बिनेशन मान लो c1 और c3 का है तो ड्राइंग एंड डांस, c2 और c3 का है तो आपका म्यूजिक एंड डांस, एंड यू हैव टू डिफाइन कंप्लीट दिस पर्टिकुलर, कि अगर आपने c1, c2, c3 को चेक किया तो तीनों चीजें आपको मेंशन करनी है। आपको हर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंगली शो करना है ये पर्टिकुलर फॉर्म। हैव यू अंडरस्टैंड? हेलो, यस मैम। have you got my particular point? This is a very important concept of check boxes, okay, and radio button and particular drop down menu. This is a basically concept of DOM. DOM का ही पूरा concept है जिसके थ्रू आप डेटा fetch कर रहे हो, अंदर की वैल्यू fetch कर रहे हो, ओके। यस, आपको नोट करना है तो नोट कर सकते हो। यस मैम। मैम सिंटेक्स इतना बड़ा है कि नोट करना दिक्कत होता है। इसको मैं स्मॉल कर देती हूँ, पूरा पेज नजर नहीं आता। आप फिर इसको ना जूम कर लेना। मैम एक बार ऊपर कीजिए जरा। जी, अब ड्रिल डाउन कर देते हैं एक बार। ओके, यस हो गया। चलिए अब आगे देखो, मैंने आपको इसके अंदर यूज बता दिया कि हाउ टू यूज चेक बॉक्सेस, ड्रॉप डाउन मेन्यू, ओके, एंड ऑप्शन बटन। आपको इसके अंदर चेंज करना आना चाहिए, कैसे कैसे आप चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट देखिएगा, अब सपोज कीजिए आपको यूज करना है इवेंट्स, इवेंट्स के थ्रू आपको यूज करना है। मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम वी हैव कवर्ड द माउस ओवर इवेंट्स, माउस ओवर, माउस डाउन,
वेरियस टाइप के माउस इवेंट्स आप यूज करते हो। ओके, अब मैं आपको माउस इवेंट्स बता रही हूँ, हाउ टू यूज इट। यस, अब देखिएगा, एक बार मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, when we roll the particular mouse here, then image will change. When we when जैसे आप इसके अंदर क्या करते हो, माउस ओवर करते हो तो इमेज चेंज होती है, जैसे आउट करते हो तो इमेज चेंज होती है। ओके, आपने यहाँ पे कितनी इमेजेस सेट किए हैं? एक तो डिफॉल्ट इमेज, दिस इज ए पर्टिकुलर डिफॉल्ट इमेज। ओके, और जैसे आप रोल कर रहे हो तो इमेज चेंज हो रही है, आउट कर रहे हो तो इमेज चेंज हो रही है। यस, अब मैं आपको बताती हूँ, दिस इज ए वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। ओके, you have to create a folder. Okay, first of all you have to create a folder and rename all the particular JPG PNG files into 1 2 3 4 numbering. You have to define a particular rename 1 2 3 4. Okay, बस we have used 3 images here, 4 images दी हुई यहाँ पे, लेकिन हमने यूज किया 3 images का। ठीक है, आपने क्या कोड करना है, आपको क्रिएट करना है 2 फंक्शंस। देखो मैंने यहाँ पे 2 फंक्शंस क्रिएट किए हैं, फंक्शन शो एंड फंक्शन शो 1। ओके, और इन बॉडी सेक्शन यू हैव टू डिफाइन img src सोर्स। सोर्स में आपने डिफॉल्ट में 1.jpg सेट कर दिया। 1.jpg क्या है हमारी, ये पर्टिकुलर क्या है, केक की इमेज है। ओके, जो हमने डिफॉल्ट में सेट कर दिया। अब देखो नेक्स्ट आपके पास क्या है, जैसे आपने यहाँ पे दिया हाइट विड्थ, पर्टिकुलर जो आपकी इमेज नेम है, वी कैन सेट द आईडी आल्सो। ओके, आईडी के थ्रू भी आप इसको चेंज कर सकते हो, फेच कर सकते हो। ओके, जैसे आपके क्वेश्चन भी दिखाया था मैंने अभी आपको, आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी था कि आपको इमेज चेंज करनी है आईडी के थ्रू, आप आईडी के थ्रू भी आप इसको फेच कर सकते हो। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, उसके थ्रू आप वहां पे एसआरसी चेंज कर देना। ठीक है, नेम इक्वल टू I1, वी हैव डिफाइन ए पर्टिकुलर इमेज बॉक्स एंड सेट द नेम I1 एंड सेम वी हैव डिफाइन, दिस इज a particular single line code. Okay, single line code है ये। On my mouse over, we have defined a particular event here. आपका असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है ये, अलग अलग डिफरेंट वे से है ये। On mouse over equal to show function, ये आपने यहाँ पे शो को कॉल कर दिया। On mouse out, जैसे आउट करोगे तो शो 1 में हमने डिफरेंट इमेज सेट कर दी, इसमें आपके पास 3 है, उसमें आपकी 2 इमेज है। ओके, एंड शो आपके पास यहाँ पे कॉल हो गया, यहाँ पे शो 1, दोनों इमेजेस आपके डिफरेंट वे से आपकी कॉल हो गई। ये आपके दोनों इवेंट हैं, इसके अंदर इमेज के ऊपर ही आपने अप्लाई कर दिए दोनों इवेंट्स। ये भी नोट कर लो, मैंने आपको टेक्स्ट के ऊपर तो बताया था कि हाउ टू रोल, आपने ओवर जो दिया था ना इसके अंदर, इनर एचटीएमएल के थ्रू आपने चेंज किया था, और इसके अंदर ऑन माउस ओवर इवेंट यूज किया था टेक्स्ट के ऊपर। अब ये इमेज को चेंज करने का, आप इमेज को ऐसे आप चेंज कर सकते हो। मैम एसआरसी में इमेज का पाथ नहीं देना पड़ता, डायरेक्ट फाइल नेम देना पड़ता है। आपको डायरेक्ट इसके अंदर इसलिए नहीं देना होता क्योंकि मैंने यहाँ पे ना एक फोल्डर क्रिएट किया है शो नेम से। देखो यहाँ पे शो नेम से एक फोल्डर क्रिएट किया है। इन दिस फोल्डर वी हैव डिफाइंड ऑल द पर्टिकुलर एचटीएमएल फाइल एंड ऑल द जेपीजी फाइल आल्सो, एक ही फोल्डर के अंदर ही क्रिएट कर दिया। ठीक है, तो आपको फुल पार्ट डिफाइन करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, जस्ट यू हैव टू रीनेम करना। यहाँ पे अगर आपने रीनेम नहीं किया तब भी आपका वर्क करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने जस्ट यहाँ पे नेम दे दिया फाइल का। ठीक है, 1.jpg 2 and 3.jpg आपकी यहाँ पे नेम, आपने जो इमेज है उसका नेम वही दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं एक और बताऊंगी, उसके लिए तो रीनेम करना पड़ेगा आपको। समझ आया? यस मैम।
और मैम नेम और क्लास में क्या डिफरेंस होता है? नेम और क्लास में? क्लास के अंदर देखो, नेम तो आपके पास क्या है, जैसे मैंने कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट बॉक्स का नेम डिफाइन किया, इमेज का दिया, बटन का दिया, और पर्टिकुलर आईडी जो होती है हमारी, आईडी होती है सिंगल, ठीक है, सिंगल आप आईडी डिफाइन कर सकते हो। और जो क्लास होती है ना, आप क्लास को डिफाइन कर सकते हो मोर इन मोर प्लेसेस, वन और मोर। जैसे आप आईडी को डिफाइन करोगे ओनली वन टाइम इन वन प्लेस, बट क्लास को वी कैन डिफाइन इन मैनी प्लेसेस। ओके, ये डिफरेंस होता है इसके अंदर। यस, समझ आया आपको? अभी तो खाना खाया है। यस मैम। यस, देखो एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे मेंशन था, आपको क्या करना है इसके लिए। देखो, एक अपर केस में आपका फंक्शन है कि जैसे आप इसको रन करते हो, मान लो आपने टेक्स्ट बॉक्स में कोई वैल्यू इनपुट किया, ओके, देखो जैसे मैंने यहाँ पे डाला ABC, ठीक है, और आपने ओके करते ही ऑटोमेटिकली आपका यहाँ पे आ जाए, असाइनमेंट का ही क्वेश्चन है ये, ABC आपका इन शो इन कैपिटल लेटर, कर लोगे? यस मैम। सिंपल है ये क्वेश्चन। आपने क्या करना है इसके अंदर, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट नेम इक्वल टू T1, जो बॉक्स है ना इसका नाम डिफाइन किया है T1, ओके, और एक बटन क्रिएट किया ऑन क्लिक, इवेंट है ऑन क्लिक, और इसका जो पर्टिकुलर क्या है आपका फंक्शन वी हैव डिफाइन, इसके अंदर दिया है strcon, जिसके अंदर आपके पास क्या है, एक वेरिएबल लिया a इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट f1 डॉट t1 डॉट वैल्यू। आप आईडी के थ्रू भी कर सकते हो, फेच कर सकते हो डेटा, ठीक है, और आपने यहाँ पे मेंशन किया, ये क्या है आपका, इसका मतलब क्या है, मैं तो ये बताओगे? टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू निकाल। यस, बॉक्स की जो पर्टिकुलर वैल्यू है ना, हमने बॉक्स को फेच किया, T1 आपका बॉक्स है, T1 की वैल्यू को आप फेच कर रहे हो और A में स्टोर कर दिया, ठीक है। मान लो मैंने डाला था अभी, क्या डाला था, ABC, ठीक है। अब जो एक लूप लगाया हमने, I इक्वल टू 0, I लेस देन A डॉट लेंथ, A डॉट लेंथ का मतलब ABC की लेंथ आ गई, ABC की लेंथ कितनी है आपकी, 3। आपका जो लूप वर्क करेगा वो 3 तक वर्क करेगा, ओके। देन I प्लस प्लस इंक्रीमेंट होता रहेगा 3 तक, 0 से लेकर आपका 2 तक वर्क करेगा, जितनी लेंथ है, ओके। एंड इसके अंदर हमने कंडीशन दी है, इफ A डॉट कैर कोड एट I ग्रेटर देन 65, यू नो द पर्टिकुलर टर्म एस्काई कोड। एस्काई कोड सबको पता है, 65 की जो वैल्यू होती है आपके पास 90, इसके अंदर जितने भी लेटर्स होते हैं इसके अंदर, यू नो। देखो मैं आपको बताती हूँ, ये तो जस्ट फंडामेंटल का पार्ट है। या मैम एसकेसी आई थिंक कहते हैं, एस्काई कोड होते हैं, अमेरिकन स्टैंडर्ड इंफॉर्मेशन इंटरचेंज कोड, ASCII, ओके। देखो अब आपके पास यहाँ पे जो वैल्यू होती है ना, स्मॉल ए की वैल्यू कितनी होती है आपकी, 97, ओके। एंड कैपिटल स्मॉल z की वैल्यू कितनी होती है, 122, ओके। 26 लेटर्स हो गए आपके। एंड कैपिटल ए की वैल्यू कितनी होती है, 65। एंड कैपिटल Z की वैल्यू कितनी होती है, 90 वैल्यू, ओके। एंड जस्ट यू हैव टू चेंज ए पर्टिकुलर बॉक्स वैल्यू इन कैपिटल लेटर्स, आपने कैपिटल लेटर्स के अंदर चेंज करना है। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ए क्या है हमारे पास, टेक्स्ट बॉक्स, ओके, जो बॉक्स की वैल्यू है, ओके, मतलब जो हमारा ABC है वो पर्टिकुलर वैल्यू A के अंदर आपकी ABC डॉट का आपका फंक्शन होता है, इसके अंदर कैर कोड एट I ग्रेटर देन, अगर आपके पास यहाँ पे 65 से अबव है
एंड और आपका 90 से आपका क्या है, स्मॉल है, इन बिटवीन है आपके पास, इन बिटवीन है, मतलब कि आपके पास इन बिटवीन का मतलब अगर आपके पास यहाँ पे इसके अंदर इसमें से आप डाल रहे हो ग्रेटर देन 65 से ग्रेटर देन हो गया, और आपके पास यहाँ पे 90 से क्या हो गया, लेस देन हो गया, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उसको टू लोअर केस में कन्वर्ट कर देना है। अगर आप कैपिटल डालते हो तो उसको लोअर केस में कन्वर्ट कर देगा, अगर आपके पास यहाँ पे अदरवाइज टू अपर केस में कन्वर्ट कर देगा। देखो दोनों काम के लिए आपका ये क्वेश्चन है, आपका ये क्वेश्चन जो है ना दोनों के लिए वर्क करेगा। मैं यहाँ पे डाल रही हूँ, मान लो ए बी सी, आपने यहाँ पे इसको स्मॉल में करना है तो ये स्मॉल में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। और आपने यहाँ पे यूज किया इसके अंदर स्मॉल में तो उसको कैपिटल में कन्वर्ट कर देगा। जस्ट मैंने यहाँ पे दोनों के दोनों इसके अंदर यूज किया है, फंक्शन यूज किया है टू लोअर केस और टू अपर केस फंक्शन। मैम अगर हम कैपिटल और स्मॉल दोनों वैल्यू इनपुट कर दे तो क्या चीज, अगर हम कैपिटल एंड स्मॉल दोनों लेटर्स इनपुट कर दे तो क्या आउटपुट होगा? अच्छा जो क्या वो हमने यहाँ पे नहीं दिया, उसका कोड नहीं दिया हुआ। अगर मैंने यहाँ पे दे दिया मान लो ए बी सी, ठीक है, तो वो उसको फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली लेगा, ठीक है। जो फर्स्ट वाला है ना उसके उस लेटर के अकॉर्डिंगली इसने चेंज कर दिया है। देखो इसने दोनों काम कर दिए हैं, ओके। देखो जैसे आप यहाँ पे एबीसी, इसने एबीसी भी कर दिया और कैपिटल भी कर दिया, आपके दोनों प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा ये, ठीक है। ओके मैम, मैंने ये ट्राई ही नहीं किया था। मैम इफ और एल्स दोनों केस एग्जीक्यूट हो रहा है, दोनों काम कर दिए इसमें क्योंकि हमने एंड कंडीशन मेंशन किया हुआ है ना, तो उसमें दोनों में से चेक कर लिया उसको। यस, नोट कर लिया, समझ आया सबको? चलिए आगे चले। यस यस मैम। यस, अभी तक कोई डाउट है तो बताइए। एनी डाउट? यस, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो। Yes. Any doubt? We have done various topics. Okay. कोई डाउट नहीं किसी को? बहुत अच्छी, वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, है ना? ऐसे होने चाहिए, कोई डाउट ही ना हो। Ma'am, we will practice today, and if we will get doubt, then we will clear next class. नहीं, कभी पूछते हो क्या? वैसे तो भी नहीं पूछते हो। एक आपकी मुझे क्वेरी सॉल्व करने, नेहा की क्वेरी थी, है ना? अनलोड वाला पार्ट है ना नेहा? यस मैम, यस। ओके नेहा, अभी मैं बताती हूँ आपको, डोंट वरी। यस, चलिए अभी मैं आपकी क्वेरी सॉल्व करती हूँ। वो तो सिंपल सी क्वेरी है। मैं अभी आपको एक डिजिटल क्लॉक बनवा रही हूँ, ठीक है? एंड स्कोर digital clock in particular box
देन पर्टिकुलर टाइम, जो करंट टाइम है आपका वो करंट सिस्टम टाइम विल डिस्प्ले। ओके, अब ये बताओ कैसे आइडिया कैसे बनेगी आपकी क्लॉक? बहुत सिंपल है। हम डेट फंक्शन यूज करेंगे। यस, और डेट फंक्शन में आपके पास टाइम भी आता है। When we type date here, मान लो आपने कोई पर्टिकुलर वेरिएबल लिया और जस्ट यू हैव टू टाइप डेट फंक्शन, आपने डेट फंक्शन डिफाइन कर दिया, देन इट विल डिस्प्ले डेट एंड टाइम आल्सो। कंप्लीट आपके पास आएगा मंडे डेट, complete date and complete time also. Okay, but we have to fetch only date. Okay, you have to mention the hours, minutes and second. Okay, just you have to display the particular hours आने चाहिए आपके, minutes and second आने चाहिए और कुछ नहीं। Okay, उसके लिए क्या करोगे? उस डेट फंक्शन में ही स्टोर्ड है ईच एंड एवरीथिंग, है ना? उसके लिए आप क्या करोगे? यस, देखो मैं आपको रन करके दिखाती हूँ। दिस इज अ वेरी सिंपल क्लॉक। जस्ट यू हैव टू मेंशन द हेडिंग हियर। आपने यहाँ पे हेडिंग मेंशन किया, ओके, एंड यू हैव टू डिफाइन अ टेक्स्ट बॉक्स। इन दिस टेक्स्ट बॉक्स एंड टाइम विल ऑटोमेटिकली रनिंग, ओके, इन डिजिटल फॉर्म। ये डिजिटल क्लॉक है आपकी। एंड जस्ट यू हैव टू शो द पर्टिकुलर आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड आपके यहाँ रन कर रहे हैं प्रॉपर, और ऑटोमेटिकली आपका टाइम चलता रहेगा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर चलेगी आपकी ये क्लॉक। ओके, यस, एंड बहुत सिंपल है ये। आपकी असाइनमेंट का क्वेश्चन भी है ये। आपको क्या करना, ये हमारा कोड है। आप कहोगे मैम सिंपल सा कोड है, तो सिंपल ही, बस थोड़ा बहुत तो लॉजिक लगता ही है ना। यस, आपने एक फॉर्म क्रिएट किया, यू हैव टू डिफाइन ए पर्टिकुलर फॉर्म। ठीक है, अगर आपने फॉर्म नहीं भी दिया तब भी आपका वर्क करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो पर्टिकुलर आप आईडी के थ्रू भी काम कर सकते हो। जब आपने आईडी डिफाइन की है ना, तो यू डोंट नीड टू डिफाइन फॉर्म नेम, ओके। बट अगर आपने इसके अंदर टेक्स्ट बॉक्स बनाए हैं, बटन्स बनाए हैं, तो आपको कंप्लीट फेच करने के लिए आपको डिफाइन करना होगा। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे आपको बताया दिस इज ए पर्टिकुलर क्लॉक एंड जस्ट यू हैव टू डिफाइन ए पर्टिकुलर बॉक्स हियर। एंड मैंने यहाँ पे डिफाइन किया नेम के थ्रू आपने फेच करना है, तो आपको इजीली यू हैव टू मेंशन द फॉर्म डॉट t1 डॉट वैल्यू, यू हैव टू कंप्लीट, यू हैव टू मेंशन, ओके। यस, देखिए मैंने यहाँ पे दिया इनपुट टाइप इक्वल टू टी, नेम इक्वल टू, नेम क्या दिया मैंने इसका टी, एंड मैंने आईडी भी डिफाइन किया, बट आईडी के थ्रू फेच करना चाहो कर सकते हो, मैंने आईडी के थ्रू फेच नहीं किया। ठीक है, और इन दिस पर्टिकुलर फंक्शन में आपने इसको देखो लोड पे डाला है। व्हेन वी लोड ए पर्टिकुलर फॉर्म देन क्लॉक विल रन ना, ऑटोमेटिकली फंक्शन आपका वर्क करेगा, और आपकी क्लॉक जो होगी रनिंग स्टेट में आनी चाहिए। अपनी वेबसाइट में ऐड कर सकते हो कि आपके पास साइड में क्लॉक चलती हुई क्लॉक चलती रहे, है ना, डिजिटल क्लॉक चलती रहे। तो आप अपने बॉडी के लोड में डाल दो, ऑन लोड। जैसे ही आपका फॉर्म लोड हो तो एक फंक्शन क्रिएट कर दिया हमने गेट टाइम्स, ओके। वी हैव क्रिएटेड पर्टिकुलर फंक्शन गेट टाइम्स हियर। In this function, we have defined a variable. Name is dt. You have defined a new date function. Okay, we have defined a date function here. Okay, and form1 dot t1 dot value. Form1 क्या है आपका, जो particular we have defined a form name here. Okay, t dot value जो particular आपके पास यहाँ पे text box है, उसके अंदर value show होनी चाहिए, कौन सी, dt डॉट गेट आवर्स। पूरी डेट में से आपने क्या निकाला, आवर्स निकाल लिए। dt डॉट गेट आवर्स, आवर्स में h आपका कैपिटल है, एंड आपको मेंशन करना है कॉलन, यू हैव टू मेंशन कॉलन, यू हैव टू ऐड प्लस सिंबल कॉलन प्लस dt डॉट गेट मिनट्स फंक्शन। यू हैव टू डिफाइन द गेट मिनट्स, मुझे मिनट्स निकालने हैं, ओके, एंड यू हैव टू डिफाइन द गेट सेकेंड्स, ओके। आपको यहाँ पे सेकेंड्स भी निकालनी है, ठीक है। अब देखो
ये तो आपके पास आ गया पूरा टाइम चलता हुआ, ये पूरा टाइम आवर्स आगे, मिनट्स आगे। मेरे को ना रनिंग वे में चाहिए। मैं कहती हूँ कि मेरा ये टाइम कभी एंड ही ना हो, मेरी वॉच, मेरी जो क्लॉक है वो चलती ही रहे। यू हैव टू मेंशन द विंडो डॉट सेट टाइम आउट। अगर आपने इसको ये नहीं दिया ना तो आपकी रुकी हुई क्लॉक आएगी। जो क्लॉक आएगी ना वो जो जस्ट आपका टाइम दिखाएगा बस, सेकेंड्स में कन्वर्टेड फॉर्म में नहीं आएगा। यू हैव टू मेंशन द विंडो डॉट सेट टाइम आउट गेट टाइम्स फंक्शन। यू हैव टू बार बार मैं कहती हूँ कि टाइम हो उसके बाद दोबारा से चल जाए। ओके, जैसे टाइम ओवर हो, सेट टाइम आउट, ऑटोमेटिकली फिर से आपके पास गेट टाइम फंक्शन, ऑटोमेटिकली रनिंग फंक्शन हमने कॉन्टिन्यूस स्टेप में डाल दिया तो ऑटोमेटिकली आपका रनिंग स्टेप रहेगा ये। ओके, प्लीज नोट इट डाउन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सिंपल क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। ओके, वेरी सिंपल आउटपुट कोड है इसका। हाँ जी बोलो, क्या कह रहे हो बेटा? मैम ये पूछ रहे हैं कि डेट कहाँ, टाइम वगैरह कहाँ से लेगा? आपके कंप्यूटर के जो टाइम सेट है या कहाँ से लेगा पर्टिकुलर ये डेट? जो सिस्टम टाइम है ना, आपका सिस्टम टाइम उठा पिक करता है, जो हमारे सिस्टम का टाइम है। जैसे 3:14 है अभी। ओके, अभी आपके पास यहाँ पे आ रहा है, देखो आपके पास डिजिटल फॉर्म में आता है। डिजिटल क्लॉक तो यही होती है ना कि डिजिटल फॉर्म में टाइम भी चेंज हो जाएगा। ये सिस्टम का टाइम उठाएगा, सिस्टम के टाइम के अकॉर्डिंगली इट विल डिस्प्ले, उसी के अकॉर्डिंगली आपके पास डेट जो है, कंप्लीट डेट में से इसने आवर्स निकाले हैं, मिनट्स निकाले हैं और सेकंड्स निकाले हैं। समझ आया? Yes ma'am, got it. Okay. Thank you. Okay. मैम जो टाइम दिखा रहा है ये 24 आवर के अकॉर्डिंग है, 12 आवर के अकॉर्डिंग तो नहीं है मैम? नहीं, ये आपका टाइम आपके 12 आवर्स के अकॉर्डिंग नहीं है। ये आपको ना जो डेट फंक्शन है ना, मैंने आपको बताया था जो डेट फंक्शन है, डेट फंक्शन के अकॉर्डिंगली वर्क कर रहा है प्रॉपर, उसमें भी ऐसे ही टाइम आता है। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली जो टाइम आता है ना, इसका फॉर्मेट ही यही है। इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंगली आपका डेट इसके अंदर सेट ही यही होती है, तो उसके अकॉर्डिंगली वर्क करता है। ओके मैम। Yes. Have you noted? आपने जो जो प्रोग्राम्स आज करे हैं उनको नोट करके मेरे को बताइएगा लास्ट में। ओके, आपने आज कई सारे प्रोग्राम बनाए हैं ना, आपको सारे प्रैक्टिस करने हैं। ओके, नेक्स्ट वीक आई विल चेक ऑल द प्रोग्राम्स। वेरी सिंपल सिंपल शॉर्ट छोटे छोटे प्रोग्राम्स हैं, लेकिन अभी आप बना लोगे तो बहुत बेटर रहेगा। ठीक है, और जो मैं प्रोग्राम आपको बताती हूँ तो आप नोट करते रहो, क्लिक जैसे भी करना है आपको, और अपने पास स्टोर करके रखना, क्योंकि ये जो आपको मिलेंगे नहीं ऐसे, हमने बहुत मेहनत करके बहुत आप लोगों के लिए बनाए हुए हैं प्रोग्राम्स। ओके, चलिए नेक्स्ट हम मूव करते हैं उस पे। डिजिटल क्लॉक वी हैव डन। चलिए अब मैं नेक्स्ट आपको एक छोटा सा टॉपिक बता रही हूँ, एरेज का। ओके, अब देखो हम लोगों ने डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। डेटा स्ट्रक्चर में वी हैव डन द कॉन्सेप्ट ऑफ एरे। एरेज क्या होते हैं? इन जावास्क्रिप्ट सेम कॉन्सेप्ट है, सब हर लाइन सेम कॉन्सेप्ट होता है। ओके, व्हेन वी आर यूजिंग जावा, सी प्लस प्लस, पाइथन, आप कुछ मर्जी कर लो, एरेज कॉन्सेप्ट सब में सेम होता है। ओके, अब एरेज होता क्या है? Array is a collection of similar type of elements. We can store all the integers, all names, all characters, similar type of data we can contain. Okay, आप same type का data contain कर सकते हो। This is a very good use of arrays. Okay,
all the elements stored in a contiguous position, contiguous location. जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ना वो सेम साथ साथ वर्क करते हैं, जैसे मैंने कल आप लोगों को बताया था. ओके, इन डेटा स्ट्रक्चर क्लास. ओके, array is a particular similar store, similar type of data. Same we can use in JavaScript also. Like you have to store all the particular names. मान लो मेरे को सब बच्चों के नेम स्टोर करने हैं. ओके, आप यहाँ पे एक लिस्ट बनाओगे जिसमें सारे बच्चों के नेम्स डालोगे. मान लो मेरे को मार्क्स डालने हैं, सब बच्चों के अलग अलग नंबर्स डालने हैं, तो आप एक नंबर्स की लिस्ट, यू हैव टू क्रिएट ए पर्टिकुलर नंबर लिस्ट. ओके, अब देखिए जैसे आपने इसके अंदर स्टोर करें, ये पर्टिकुलर क्या है, नेम्स है. जस्ट यू हैव टू क्रिएट ए एरे. एरे आपको क्रिएट करना होगा. वी कांट स्टोर इन पर्टिकुलर नंबर्स विद डेसिमल वैल्यू. डेसिमल वैल्यू वी कांट स्टोर. अगर आप इसके अंदर स्टोर कर रहे हैं इंटीजर, तो इंटीजर ही स्टोर करोगे. आपने यहाँ पे नेम स्टोर कर रहे हैं तो पर्टिकुलर आप सिर्फ नेम ही डालोगे, कोई इंटीजर वैल्यू नहीं डालोगे, वो आपका एक एरे नहीं बनेगा. You have to mention each and everything clear way. Okay, array is a collection of similar type of data. Similar means we can store all the particular characters, strings, integers, float values. Okay, yes, you have to create an array. Just this is a simple program we will take. ये तो मैंने कल ही बच्चों को करके बताया था. Yes, देखो, this is a very simple program. Just you have to mention using a function here. मैं कह रही हूँ सिंपल सा बताती हूँ आपको. ये भी सिंपल नहीं है, सिंपल काम भाई. चलो देखो, ये आपके पास क्या है, एक फंक्शन के थ्रू हमने एक प्रोग्राम बनाया है. क्या मेंशन किया है इसके अंदर, मैं सोची हूँ आपको विदाउट फंक्शन बताती हूँ. ओके, बिल्कुल सिंपल सा हम एक एरे का प्रोग्राम ले रहे हैं जिसके अंदर आपको यूज करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेंशन, आपको यहाँ पे क्या लिखना है इसके अंदर, स्क्रिप्ट. जस्ट यू हैव टू मेंशन स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट JavaScript. Variable, we have to define array name. You can define any array name. Okay, मैंने यहाँ पे array का नाम ले लिया array1 equal to. You have to mention एक new keyword देना होता है आपको. जैसे आप define करते हो date, आपने डेट दिया, तभी आपका एक न्यू कीवर्ड आता है. यू हैव टू मेंशन एरे इन कैपिटल लेटर, ए कैपिटल लेटर, एंड यू कैन डिफाइन ए वैल्यू. लाइक मेरे को यहाँ पे ना कोई एक नेम्स की लिस्ट बनानी है. यू हैव टू डिफाइन एनी नेम्स. Yes. अब देखिए आपने यहाँ पे ना एक एरे क्रिएट किया जिसके अंदर आपने एरे नेम दिया है array1. ओके, और ये पर्टिकुलर आपने शो किया है, दिस इज ए पर्टिकुलर कलेक्शन ऑफ नेम्स. कलेक्शन ऑफ नेम्स, आपने इन पर्टिकुलर नेम्स को डिस्प्ले करना है. हाउ टू डिस्प्ले ऑल द पर्टिकुलर नेम्स, यू हैव टू मेंशन वेरिएबल. यू हैव टू मेंशन वेरिएबल आई फॉर इंडेक्स वैल्यू, एंड यू कैन यूज लूप. For I equal to 0, I equal to 0 means array always start from 0 position. Okay, I less than equal to 0, 1, 2, 3, 4. We have defined 5 names. Okay, you have to mention I equal to 0, starting index value 0, and I less than equal to 4. Okay, and I plus plus. This is a particular increment part, and you have to define document dot, क्या mention करोगे, document dot write. document dot write, you have to mention array1. आपको प्रिंट करना है ना, आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया array
one of I. Suppose you want to print only name Seema, then yes, आपको सिर्फ प्रिंट करना है सीमा नेम. तो क्या लिखोगे? डॉक्यूमेंट डॉट राइट एरे वन ऑफ, क्या लिखोगे? वन. वन का मीनिंग क्या होता है? सीमा. बिकॉज पूजा इज पोजीशन इज 0. दिस इज 1 2 3 4 4 पोजीशन. ओके, जस्ट यू हैव टू शो ऑल द पर्टिकुलर नेम्स. यू हैव टू मेंशन द लूप. इन लूप वी हैव टू डिफाइन i equal to 0, i less than equal to 4 and i plus plus. Using this loop we can show all the names. Okay, I equal first value is 0. It will show Pooja. Okay, and when we automatically work कर रहा है आपका loop, आप सबको loop पता होंगे I think. I plus plus करोगी तो automatically आपका I plus plus के अकॉर्डिंग, मैंने भी करवाया यार तुमको जावास्क्रिप्ट में loops को. ओके, I plus plus करोगे तो ऑटोमेटिकली आपका इसके अंदर इंक्रीमेंट होगा, 1 पे आएगा सीमा, रोहित, पूजा. ऑटोमेटिकली आपके पास सारे नेम्स आ जाएंगे. ठीक है, अब देखो मैं इसको रन करती हूँ. सेव किया, मैंने यहाँ पे एक इसका नेम मेंशन कर दिया एरे. एरे नेम दिया मैंने एरे 1 डॉट HTML. Script type equal to text. Yes, देखो मैंने वहां पे सेमीकोलन नहीं लगाया था ना. This is a particular terminate point. You have to mention the semicolon. Okay. Yes. अब मेरे को names जो आपके आ रहे हैं इसको आपको क्या करना है? You have to mention BR. BR का मीनिंग क्या होता है? ब्रेक रो. अब देखो सारे names आपके पास आ गए. Okay. Using particular array. Yes. Have you got this particular point? Arrays क्या होते हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? यस मैम, अगर हमारे पास एरे की कुछ मतलब बहुत बड़ी लिस्ट है जिसमें हमें नहीं पता कि कितना काउंट है, तो जैसे i लेस देन इक्वल्स टू आपने 4 लिखा हुआ है. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. मेरे को पता ही नहीं कितने नेम्स हैं. वेरी गुड. अब मैं आपको बता रही हूँ डायनेमिक. वेरी गुड. अब देखो जैसे सपोज करो you have to define a particular array. We have defined a simple array. आप सबको नेम पता है, 5 नेम्स के स्टूडेंट्स के नेम है. जस्ट यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर नेम्स. ओके, एंड सपोज यू वांट टू क्रिएट ए पर्टिकुलर नंबर्स, मार्क्स. मेरे को नंबर्स का एरे क्रिएट करना है और मार्क्स का एरे क्रिएट करना है. जस्ट यू हैव टू मेंशन द पर्टिकुलर नेम मार्क्स. एक बार देखो मैं बताती हूँ अभी आपको. हिमानी, आपने जैसे यहाँ पे मेंशन किया, आपने यहाँ दिया 10, 20, 30, 40, 50. ओके, जस्ट आपने यहाँ पे डिफाइन किए हैं वैल्यूज, न्यूमेरिक वैल्यूज. ओके, व्हेन वी डिफाइन न्यूमेरिक वैल्यूज यू डोंट नीड टू ऐड द डबल कोट्स. आपको डबल कोट्स ऐड नहीं करने. जस्ट यू हैव टू मेंशन द, देखो आपके पास यहाँ पे वैल्यूज आ जाएंगे 10, 12 जो आपने वैल्यूज दी है. ठीक है, अब सपोज करो, सपोज मैंने यहाँ पे इसको डिफाइन नहीं किया. सपोज करो मेरे को वैल्यू ही नहीं पता. ठीक है, आपको आपने एक एरे तो बना दिया, ब्लैंक एरे, बट यू हैव नो आइडिया अबाउट वैल्यूज. ओके, क्या वैल्यूज हैं, कितनी, हाउ मेनी वैल्यूज आर देयर, नो आइडिया. ओके, व्हेन वी रन दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम, द इनपुट, हाउ टू इनपुट अ डेटा. फॉर दिस यू हैव टू मेंशन n. n क्या आपके पास यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स. You have to input number of elements. You have to mention the prompt using prompt statement. Enter how many elements.
आपको यहाँ पे इनपुट करना है आप एलिमेंट्स कितने हैं। ओके, अब अपने यूजर से एलिमेंट्स ले लिए। ओके, अब मेरे को यूजर से मिल गया एलिमेंट्स 5, यू हैव टू इनपुट 5, 10, 20। ओके, एंड जस्ट यू हैव टू इनपुट द वैल्यूज। पहले तो एलिमेंट्स की साइज आपने पूछा है उससे, है ना, एंटर हाउ मेनी एलिमेंट्स। नेक्स्ट यू हैव टू इनपुट द एरेज वैल्यूज। जस्ट यू हैव टू मेंशन array 1 equal to input all the values in a numeric form. You have to mention parse in prompt okay, you have to input values. अब देखो मैंने यहाँ पे values input करनी है। ओके, array 1 में, बाकी वही सेम है सारा। जस्ट यू हैव टू, अब एक चीज और, मैंने कुछ गड़बड़ करी है ना, आपको यहाँ पे इसके अंदर लूप लगाना है पहले। फोर i इक्वल टू 0, i लेस देन n, i लेस देन n एंड i प्लस प्लस। ओके, ये मैंने क्यों किया? की वैल्यू n तक चलेगी, क्योंकि आपने इनपुट कर रहे हो, तो आपका जो लूप चलेगा वो n तक चलेगा ना, 0 से। यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम 0 पोजीशन एंड एंडिंग विद द n पॉइंट। n is the number of elements. You have to input n number, according to we can input the values. Okay, same you have to display the values. You have to mention I equal to 0. Okay, just you have to print all the values I less than n. Yes. First of all, how many elements? I have input 6. अब 6 के अकॉर्डिंगली आपको 6 वैल्यूज इनपुट करनी है। ओके, यू हैव टू मेंशन द अनडिफाइंड। अनडिफाइंड क्यों आया? ऐसे मजा आता है, एरर आना चाहिए। मैम, n should be an integer. हाँ, n should be an integer. You have to put %, no, and n equal to %. n equal to % of prompt. एक सेकंड, कुछ गड़बड़ दिखा रहे हैं ना, एक मिनट रुको। मैंने 3 डाला, 1 2 3, ये क्या हुआ? अनडिफाइंड क्यों दिखा रहा है? i इक्वल टू 0। देखो हमने यहाँ पे n लिया, ठीक है, यहाँ पे आपके पास आया array 1 इक्वल टू parse in prompt enter values। आपकी यहाँ से वैल्यूज इनपुट हो गई। अब हमने यहाँ पे लूप लगाया, i इक्वल टू 0, i लेस देन i प्लस प्लस, डॉक्यूमेंट डॉट राइट array 1 ऑफ i। Ma'am, n is a string now. क्या? N is a string now. You have to put % in front of that prompt. % दे देते हैं। ये वो करेक्टर में उठा रहा था ना उसको, आई थिंक। देखो आपने यहाँ पे, अरे यार मैंने वो डाल दिया, आपने यहाँ पे डाला 4 1 2 3 4। अरे यार बहुत अच्छा। मैम, एरे 1 के बाद आई होना चाहिए स्क्वायर ब्रैकेट में। क्या? अरे मैंने ये कल प्रोग्राम करके दिखाया बच्चों को। मैम, फर्स्ट लूप में ARR के बाद स्क्वायर ब्रैकेट्स में आई आएगा। स्क्वायर ब्रैकेट के बाद मैम फर्स्ट लूप में array 1 के बाद आई आएगा। हाँ, यहाँ पे इसके नीचे, यहाँ पे इसके नीचे जो array 1 लिखा है ना आपने, ARR1। यार सुबह से क्लास से लेके ना घूम जाता है।
पर्सन भूल जाते हैं, कभी तो उसको वैल्यू मिली नहीं, हमने यहाँ पे इनपुट तो कर दिया लेकिन यहाँ पे इसको वैल्यूज तो मिली नहीं है और हम उसको प्रिंट करवा रहे हैं। देखो 4 फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड ये सारी वैल्यूज आ गई। ठीक है, आप कितने मर्जी एलिमेंट्स डालो उसके अकॉर्डिंगली। सपोज यू हैव टू इनपुट 8 1 2 3 4 5 6 7 8 okay, and suppose you want to print the sum। अगर मेरे को इन्हीं वैल्यूज का सम प्रिंट करना है तो जस्ट यू हैव टू डिक्लेयर ए वेरिएबल सम इक्वल टू 0 ओके, and these are inputting values। when we input the values and just you have to print the sum, you have to mention क्या करोगे यहाँ पे sum equal to sum plus array of I, array of I एक एक करके उन वैल्यूज का वो सम दिखा देगा आपको। ओके, and just you have to print the sum also। array 1 of I, ठीक है, आप इसी में ही array करो 1 of I, अरे 1 of I, हाँ array 1 of I आएगा, आप इसी में ही कर दो। आपकी वैल्यूज इनपुट हो रही हैं और वो सम भी यहाँ पे कर देगा। ठीक है, और जस्ट यू हैव टू प्रिंट द सम आल्सो। यहाँ पे आपके पास लास्ट में यू हैव टू प्रिंट डॉक्यूमेंट डॉट राइट, यहाँ पे array 1 आएगा। document dot write the sum is plus sum। ओके, देखो मैं स्मॉल लेती हूँ, 3 वैल्यूज लिए हैं 1 2 3, द सम इज 99। ओके, yes, everyone got this particular point? This is a very important how to input the particular arrays values। okay, but इसके अंदर each and everything you have to careful this particular point। आपने array जो particular define किया है तो आपने array 1 लिया है तो array 1 ही define करना है, और you have to mention the particular index value also। this is a particular loop and you have to mention the index value। according to index value all the particular sum will display। ठीक है, ऑल वैल्यूज का सम डिस्प्ले होगा और लास्ट में आपको यू हैव टू प्रिंट द सम। ओके, वैल्यूज भी प्रिंट होनी चाहिए एंड सम भी प्रिंट होना चाहिए। ओके, यूजिंग दिस प्रोग्राम, यूजिंग दिस एरे वी कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रोग्राम्स, वेरियस टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स। अब आते हैं वेब पे। अभी तो हम वेब पे नहीं थे, एरे का वेब हम यूज कर रहे हैं अब। ओके, यस, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू क्रिएट ए एरे ऑफ कलर्स। अब मेरे को कलर्स का एरे बनाना है। अभी तो मैंने आपको इंटीजर्स का एरे बनवाया, नेम्स का एरे, यू हैव टू क्रिएट मार्क्स एरे आल्सो। ठीक है, अब मेरे को ना एक कलर्स का एरे बनवाना है। ओके, यूजिंग ऑल द पर्टिकुलर कलर्स यू हैव टू चेंज द बैकग्राउंड कलर, फोरग्राउंड कलर। आपने इसके अंदर टाइमर सेट करना है, यू हैव टू सेट द टाइमर आल्सो। टाइमर्स के अकॉर्डिंगली आपको कलर्स चेंज करने। ठीक है, अब कैसे चेंज होंगे, लूप बनेगा मैम इसका। यस, एंड यू हैव टू सेट द कलर्स। पहले आप उसमें एक एरे क्रिएट करोगे, एरेस के अंदर यू हैव टू डिफाइन द कलर्स, ऑल द कलर्स। ठीक है, लाइक आप 5 to 7 कलर्स ऐड कर दो। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंगली आपका कलर चेंज होगा। मैं आपको प्रोग्राम रन करके दिखाती हूँ पहले। देखो, मैंने तो ये इसके अंदर फास्ट रन करवा रखा है, बहुत ज्यादा फास्ट करना। अब इसमें देखिए आपका इसमें ना टेक्स्ट कलर चेंज हुआ है, 4 कलर। यू हैव टू चेंज द 4 कलर।
सेम बैक कलर भी आप अप्लाई कर सकते हो और 4 कलर भी अप्लाई कर सकते हो। इसमें ना आपने यू हैव टू डिफाइन ए एरेज आपने एरेज का कलर डिफाइन किया है। ओके, चलिए करें स्टार्ट। आपको यूज कैसे करना है, यू हैव टू मेंशन इन एरे। देखो आपने एक एरे क्रिएट कर दिया, इसके अंदर यू हैव टू मेंशन ए पर्टिकुलर स्क्रिप्ट हियर एंड बीजी इज ए वेरिएबल। You can define any name, new array, and you can set the colors. We have defined a particular 5 colors here. You can define number of colors. Okay, and I equal to 0. I is a variable. First of all, you have to mention the fetch the red color. Red color stored in a 0 position. Okay, 0 position पे आपका red color store है, तो आपने मेंशन किया I equal to 0. Okay, and we have created a change color function. You have to change the color, background color change करना है आपको. Okay, and you have to mention document dot bg color equal to bgi. मैंने कोई लूप नहीं लगाया, बिल्कुल सिंपल है ये, इफ कंडीशन के अकॉर्डिंग बनाया है ये. You have to mention document dot bg color equal to bgi. I का मीनिंग यहाँ पे क्या है, इंडेक्स वैल्यू. ओके, ऑटोमेटिकली i प्लस प्लस i में इंक्रीमेंट होगा. आपका लूप इसके अंदर नहीं है, जस्ट हमने इस कंडीशन के अकॉर्डिंगली क्रिएट किया है. तो i प्लस प्लस फर्स्ट ऑफ ऑल इट विल फेच द रेड कलर. ओके, रेड कलर यहाँ पे इसके अंदर प्रिंट इसके अंदर होगा. I प्लस प्लस इंक्रीमेंट होगा एंड मूव ऑन ग्रीन कलर. 0 से 1 पे पहुंचेगा तो ग्रीन कलर. एंड हमने कंडीशन दी है इफ I ग्रेटर देन 4. ओके, 0 1 2 3 4. जैसे इसके अंदर I ग्रेटर देन 4 होगा, अगेन इट विल चेंज इनटू I इक्वल टू 0 बिकॉज दिस इज ए पर्टिकुलर रनिंग प्रोग्राम. आपने देखा कहीं स्टॉप हो गए, 5 कलर्स के बाद स्टॉप हो गया हो? नो, स्टॉप नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, रनिंग पॉइंट में है. ठीक है, अब देखो ये वाला आपका यहाँ तक फंक्शन ओवर हो गया. यू हैव टू कॉल दिस फंक्शन. आपको कभी जो पर्टिकुलर होता है स्क्रिप्ट के अंदर कॉल करना होता है ना फंक्शन को, तो हमने चेंज कलर फंक्शन को एक सेट इंटरवल दिया है, उसमें हमने कॉल कर दिया और टाइमर लगा दिया. यहाँ पे माइक्रो मिली सेकेंड्स का टाइम मेंशन किया. जितना आप टाइम को डिले करोगे, सपोज मैंने कर दिया 500. ओके, मैंने यहाँ पे सेट कर दिया 500. तो 500 इंटरवल के अकॉर्डिंग माइक्रो मिली सेकेंड्स का ये फंक्शन क्रिएट होगा. ऑटोमेटिकली जो कलर्स कॉल होंगे इसके अकॉर्डिंग, इंटरवल के अकॉर्डिंग. ओके, अब देखो जितना आप इसको, जैसे मैंने 100 किया हुआ था ना, उतना फास्ट हो रहा था. ओके, स्पीड आपको बहुत फास्ट करनी है तो इसका टाइम स्पेस जो है वो कम करो. अगर आपको बढ़ाना है तो इसका थोड़ा स्टॉपिंग में रहे तो आप इसका टाइम 1000 2000 स्टॉप करके कर सकते हो. ओके, उससे उतना ही डिले होगा. ओके, जस्ट यू हैव टू चेंज द FG कलर फॉर चेंजिंग द 4 कलर. ठीक है, आप यहाँ पे इसके ना चेंज कर सकते हो. ठीक है, अच्छा मेरा क्वेश्चन है, आपको चेंज करने हैं दोनों कलर्स इन ए सेम प्रोग्राम, क्या करोगे? I plus 2. You have to change the background color and 4 color in a same program. क्या करोगे? One for the background color and second for the foreground color. Yes, very good. You have to create 2 arrays. Okay. Yesterday one student said we have to create only 1 array. No, we have to create. अगर आप एक ही array create करोगे तो एक ही array में तो आपके colors आपके सारे visible ही नहीं होंगे. Okay, you have to show all the particular colors and you have to show the text also in different colors. Okay, you have to create 2 arrays for this. One for BG color for background color, changing the background color, and you have to change. You have to use 2 functions also. You have to create 2 arrays and 2 functions also. One for
changing the background color, and you have to mention BG color here, and next is the 4 color also. Okay, very good. Okay, next time you have to create this program. Okay, I think today we have done various programs. आज हमने बहुत सारे प्रोग्राम करे हैं ना? Yes. आपके पास बहुत सारी असाइनमेंट्स हो गई। अच्छा, अब देखिए मैं अब ज्यादा और नहीं आपका मैं इसमें करवाऊंगी, क्योंकि आपके पास लिमिट से ज्यादा हो जाएगा तो फिर तो ऊपर से जाएगा, है ना? आज हमने बहुत सारे एरे कॉन्सेप्ट किया, डॉम कॉन्सेप्ट किया, जिसके अंदर में चेक बॉक्स, रेडियो बटन एंड ड्रॉप डाउन मेन्यू. ओके, एंड वी हैव क्रिएट डिजिटल क्लॉक. और हमने क्या किया? यस, वी हैव क्रिएट माउस ओवर इवेंट्स. ओके, माउस डाउन, माउस ओवर, माउस आउट इवेंट हमने किया. ठीक है, और हमने आज ये पर्टिकुलर एरेज टॉपिक किया है. ओके, अच्छा, इसके अलावा जब नेक्स्ट क्लास के अंदर वी विल कवर अदर वेरियस टॉपिक्स. ओके, बहुत सारे हमें कवर करने हैं अभी. लाइक आपको एक विंडो क्रिएट करनी है, आपको एरर हैंडलिंग इवेंट्स करने हैं इसके अंदर यूज, और वैलिडेशंस अप्लाई करना है. ठीक है, तो हमारे पास वी हैव ओनली 2 क्लासेस. आई थिंक 2 क्लासेस है ना आप लोगों की? ठीक है, 2 क्लासेस है आई थिंक. वी विल डन ऑल द पर्टिकुलर टॉपिक्स. ओके, यस. अब बताइए कोई डाउट है किसी को? तो एनी डाउट? मैम मेरा पॉइंट अभी भी पेंडिंग है. यस मैम, अब मेरा क्वेश्चन अभी भी पेंडिंग है. अरे यार, तुम्हारा क्वेश्चन तो रह गया. अभी मैं बता देती हूँ, 2 मिनट में रुको. मैंने करे भी हुए इसके अंदर. देखो, मैं आपको ये बताती हूँ, जो हमारा अनलोड इवेंट है ना, बेसिकली जो आपका अनलोड इवेंट है, अनलोड मीन्स क्या होता है? व्हेन वी अनलोड आवर ब्राउजर, मतलब कि जैसे आप इसको क्लोज करते हो या रिफ्रेश करते हो. ओके, जैसे पर्टिकुलर आपने इसको क्या किया, पर्टिकुलर आपने अनलोड का मीनिंग व्हेन वी क्लोज दिस पर्टिकुलर वेब ब्राउजर विंडो, ऑटोमेटिकली आपका अनलोड आपका वर्क करता है. ठीक है, अब देखिए आपके पास ब्राउजर पे डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन ब्राउजर, विच ब्राउजर वी आर यूजिंग. यू आर यूजिंग विच ब्राउजर? नेहा, यू आर यूजिंग विच ब्राउजर? गूगल क्रोम. गूगल क्रोम यूज कर रहे हो ना?
तो देखो ये ब्राउजर पे डिपेंड करता है कि आप ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हो, ये सब में रन नहीं करेगा, ठीक है। ये सारे के सारे आपके जो पर्टिकुलर उसमें है सब में रन नहीं करता ये वाला कोड, ओके। कि आप ऑन लोड तो वर्क करता है बट अनलोड जो होता है ना वो सारे ब्राउजर पे वर्क नहीं करता, ठीक है। अच्छा दिखा, मैं आपको दिखाती हूँ कहाँ गया मेरा प्रोग्राम। अरे मैंने स्क्रीन नहीं शेयर करी, अरे यार। यस देखो, yes, this is a very simple program, okay. Function, we have created two functions. First is welcome function and second is buy function, okay. And just you have to define on load or unload. आपने load और unload event कहाँ पे define करने, in body section. Just you have to call on load welcome function and you have to call on unload, just आपने define किया on unload में u capital आएगा, by function. अब देखिए मैं इसको रन कर रही हूँ, वेलकम तो ऑटोमेटिकली लोडिंग टाइम में आ जाएगा। जब आप यहाँ पे वेलकम करोगे ना, देखो वेलकम टू माय वेबसाइट, ठीक है। और जैसे आप यहाँ पे इसको दोबारा से रिफ्रेश करोगे फिर से आएगा वेलकम टू माय वेबसाइट, ये लोडिंग है। अब जैसे आप इसको क्लोज कर रहे हो, फिर आपने इसको क्लोज किया, ठीक है। आपके पास यहाँ पे ये देखो सारे अनलोड इवेंट आ गए। अब मैं इसको अगर सब कुछ बंद कर दूंगी ना तो मेरे पास आएगा यहाँ पे बाय, ठीक है। अब देखो एक चीज और, मैं इसको रन करती हूँ क्योंकि ब्राउजर पे डिपेंड करता है ना, ये आपका इंटरनेट एक्सप्लोरर पे रन किया मान लो, देखो यहाँ पे आ रहा है वेलकम टू माय वेबसाइट, दिस इज अ पर्टिकुलर लोडिंग पार्ट, ओके। अभी यहाँ पे भी नहीं आया, तो ऑटोमेटिकली यहाँ तो आता है क्योंकि हमने तो चलाया है अभी एक ही बार है। वेलकम टू माय वेबसाइट, ओके। अब मैंने इसको क्लोज किया। ऑन जो अनलोड है ना वो आपका प्रॉपर वे में वर्क नहीं करता बेसिकली। देखो ऑन जैसे आप लोड करते हो तो आता है, अनलोड के टाइम में ये सारी विंडो को बंद करवाएगा, उसके बाद जाके वर्क करेगा। अगर मैंने ये पूरा बंद कर दिया तो पूरी मीटिंग में आपकी वो बंद हो जाएगी। मैम जो पेज लोड मेथड होता है वो पेज कॉल होने पे कॉल होता है, बट ये अनलोड ब्राउजर से हम एग्जिट करते हैं तो कॉल होता है या पेज से एग्जिट करते हैं तो कॉल होता है? आपकी वॉइस नहीं आ रही, एक बार दोबारा बोलना, क्या कह रही बेटा? मैम अब मैं ये कह रही हूँ कि जो पेज लोड ऑन लोड मेथड होता है, हम पर्टिकुलर पेज पे जाते हैं तो कॉल होता है, राइट। लेकिन ये जो आपने अभी बताया कि जब हम ब्राउजर से एग्जिट करेंगे तो ऑन अनलोड कॉल होगा, बट होना तो ये चाहिए कि जब हम पेज से एग्जिट करें तो अनलोड कॉल हो। बिल्कुल सही कह रहे हो कि पेज जैसे हमारा डीएक्टिवेट होगा, जैसे ही पेज हमारा डीएक्टिवेट होगा तो ऑटोमेटिकली आपका वो मैसेज आता है।
ठीक है। तो मैम अभी जो सारे टैब्स क्लोज क्यों कर रहे हो? हाँ नहीं बिल्कुल सही कह रही हूँ कि सारे टैब्स आपके ओपन, इसके अंदर मैं ये आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट मैं रख रही हूँ, क्योंकि ये पॉइंट मैंने पहले भी देखा था इसके अंदर कि सारे कई बार क्या होता है कि आपका इसके पीछे छुपा होता है, सारे जितने भी होते हैं ना उनके पीछे छुपा होता है, और लास्ट में मेरे पास आ रहा होता है बाय बाय। तब मैं देखती हूँ, मैंने कहा अच्छा आप 12 ही बाय बाय, ठीक है। क्योंकि आपके पास यहाँ पे क्या है, ऑन लोड इवेंट ऑटोमेटिकली आपका वर्क करता है, क्योंकि वो विजिबल है, सामने आता है, रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली विजिबल होता है। बट ऑन अनलोड जो होता है ना, वो आपका लास्ट टाइम का ऑप्शन होता है, ठीक है। लास्ट टाइम का ऑप्शन होता है, तो लास्ट टाइम में ऑटोमेटिकली इसको वर्क करना चाहिए। बेसिकली ये आपका जो पर्टिकुलर है कि उसी टैब पे हम क्लिक करें तो उसी टैब के अंदर ही वर्क करता है। अब देखो मैं फायरफॉक्स में चला रही हूँ, मेरे पास तो ब्राउजर्स हैं तो उसके अकॉर्डिंग अलग अलग। देखो वेलकम टू माय वेबसाइट, अब मैंने सिंगल ब्राउजर पे ही चलाया है, ओके। अब मैंने यहाँ पे ओनली सिंगल ब्राउजर पे इसको किया, रिफ्रेश अगेन, देन वी क्लोज इट। तभी नहीं है, कहीं छुपा तो नहीं हुआ। वैसे मीनिंग तो पता चल ही गया ना आपको, इसका मीनिंग तो पता चल गया कि इसका मीनिंग होता है कि आपका अनलोड का मतलब जैसे ही अनलोड होगा तो एग्जाम में लैब में तो नहीं आएगा ये क्वेश्चन। एग्जाम में नहीं आता, अगर आ गया ना तो बता देना कि इसका यूज ही होता है, अनलोड मीन्स क्या होता है। बट मैम लैब में तो लाइव करके दिखाना होगा, फिर हमें 0 मार्क्स मिलेंगे। मैं इसके अंदर और भी ट्राई करूंगी, ठीक है, एक बार देखूंगी मैं इसके अंदर क्यों नहीं आ रहा। अदरवाइज आप इसके अंदर ये मान के चलो कि ब्राउजर, जो पर्टिकुलर ब्राउजर होता है ना, ब्राउजर पे वर्क करता है। विल इट वर्क इफ वी गो टू, क्या लिखा है आपने, अनदर वेबसाइट इन द सेम टैब। करना एक बार अखिल, आपने ये करा है तो करके दिखाओ। I'm asking, ma'am. I don't know. I haven't tried it. I'm asking that if we put another address in that address bar, will it work? चलो नहीं तो मैं नेक्स्ट टाइम आपके लिए सॉल्व करके रखती हूँ इस क्वेरी को, ओके। यस नेहा, नो मैम आई से ओके ओके यस। अब नेक्स्ट क्लास में और अगर डाउट हो तो प्लीज पूछिएगा, ओके। बाय बाय टू ऑल, आई हैव क्लास टू फॉलो। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम। थैंक यू मैम। बाय। Bye.